Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Today we are starting lesson number 4, sorting of materials into groups. Okay. What do you mean by sorting? Okay, for example, when you pack your bags, you don't put all the books together in the bag. है ना? In your bag you have 2 or 3 pockets in which in one pocket you keep only notebooks, in another pocket you keep only textbooks, in another pocket you keep lunch box, and in another small pocket you keep your compass box or whatever extra things you have. That means it is sorting. You are doing the sorting के कौन से पॉकेट में क्या आएगा. ऐसा नहीं है कि लंच बॉक्स के साथ में ही साइंस की टेक्स्ट बुक डाल दी और टेक्स्ट बुक के साथ में नोटबुक डाल दी और वाटर बॉटल वाले में कोई कंपास वम्पास डाल दिया. तो यू विल हैव टू सर्च द थिंग्स जब आपको चाहिए तो. लेकिन जब आप सॉर्टिंग करते रखते हो तो आपको जो चीज़ चाहिए तो पर्टिकुलर उसी पॉकेट में आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी. तो इट बिकम्स ईजी टू सर्च द थिंग्स व्हेन यू आर सॉर्टिंग. सो मटेरियल्स हमारे आजू बाजू में जो है उसको हम सॉर्ट करते हैं. राइट. शॉर्ट मतलब छोटा नहीं, शॉर्ट मतलब ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज, सेग्रीगेटिंग. ओके. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. वी सो दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मेनी वेराइटी इन देम. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, there is such a vast variety of objects everywhere we see around us. A chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, and stones, and many other objects. So all these objects have different shapes, colors, and uses. Right. So look around and identify the objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. If we include the objects that are nearly round, our list could also include the objects like apple, oranges, and earthen pitcher, garba. Suppose we are looking for objects that are edible, यानी कि जो चीज़ को हम खा सकते हैं. We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastic, bucket, lunch boxes, toys, water containers, pipes, and many such objects. So there are so many ways to group the objects. तो कोई ऐसा नहीं है. कभी कभी हम ऑब्जेक्ट्स को उसके ग्रुप के हिसाब से कर सकते हैं, उसके शेप के हिसाब से कर सकते हैं, उसके कलर के हिसाब से कर सकते हैं. It depends how we are sorting the materials. All objects around us are made up of one or more material. दूसरी एक चीज़ है कि हमारे आजू बाजू में जो चीज़ें दिखती है वो या तो सिर्फ एक ही चीज़ से बनी होती है या उसमें 2-3 चीज़ें मिक्स होती है. दिस मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर एंड मड और सॉइल. ये सब भी चीज़ें मिक्स हो सकती है. सो कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द मटेरियल्स. सो चलो एक एक्टिविटी करते हैं. Let us collect as many objects as possible from around us. हमारे आजू बाजू में जो चीज़ें दिखती है उस सबको इकट्ठा कर लेते हैं. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? तो स्कूल की चीज़ें, घर की चीज़ें और आजू बाजू की चीज़ें हम लोग इकट्ठा करते हैं तो हमको क्या क्या मिल सकता है. चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ ए व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractors, roads. जो भी चीज़ें हम, ऐसी नहीं है कि चीज़ रूम में ला सकते हैं, जो चीज़ हम रूम में नहीं ला सकते उसका भी हम एक लिस्ट बना लेते हैं. Now separate all the objects from this collection that are made from paper or wood.
अभी जो भी चीज़ें मिली हमको उसमें से हम दो ग्रुप कर देते हैं, जो चीज़ पेपर से बनी हुई है वो एक साइड में और जो चीज़ लकड़े से बनी हुई है वो दूसरी साइड से। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप फ्रॉम पेपर और wood, while the other group that has the objects that are not made of these materials। फिर या तो पेपर से बनी हुई चीज़ होनी चाहिए या लकड़े से बनी हुई चीज़, तो एक साइड रखो, और बाकी सारी चीज़ें जिसके अंदर लकड़ा भी नहीं है और जिसके अंदर पेपर भी नहीं है उसको अलग रख दो। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फूड। तो one group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of this material. Similarly we can separate the things that are used for preparing the food। तो दूसरा ग्रुप भी हम ऐसा कर सकते हैं कि एक चीज़ें जो खाना बनाने में काम आती है, दूसरी जो खाना बनाने में काम नहीं आती। सो हमारे ऊपर है कि हम चाहे इतने सेग्रीगेशन अलग अलग सेपरेशन ग्रुप कर सकते हैं। Now let us be a little more systematic. List all the objects selected in table 4.1. Try to identify the materials that each one is made up of. It would be fun to make this a large table collection information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made up of. In such case, discuss with your friends, teachers and parents to identify the materials. For example, मेरे पास ये कलेक्शन है, राइट। अभी मैं इसको अलग अलग सॉर्टिंग करता हूँ। तो देखो ये कैंची ये बनी हुई है मेटल से और प्लास्टिक से। फिर एक पिन होल्डर है वो सिर्फ मेटल से बना हुआ है। फिर एक पेन है जो सिर्फ प्लास्टिक से बनी हुई है, मार्कर, राइट। फिर एक कटर है जिसके अंदर प्लास्टिक भी है और मेटल भी है। तो प्लास्टिक भी है और मेटल भी है, तो ये दोनों एक ग्रुप में आ गए। ये तीसरी सीज़र जिसके अंदर प्लास्टिक और मेटल है, तो ये एक ग्रुप हो गया। ये सिर्फ मेटल है, ये सिर्फ प्लास्टिक है, ये सिर्फ प्लास्टिक है, राइट। दिस सिर्फ मेटल है, तो ये मेटल, ये प्लास्टिक और ये दोनों। तो इस तरह से हमने अलग अलग सेग्रीगेशन कर लिया कि इसमें वो चीज़ें हैं जिसमें प्लास्टिक और मेटल दोनों हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर सिर्फ मेटल है, और ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर सिर्फ प्लास्टिक है, राइट। सो इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं ग्रुपिंग, राइट। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, हमने जो अलग अलग मटेरियल्स को सेग्रीगेट कर दिया। अब हम देखते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, राइट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ। जो हम लोग नहाते हैं टम्बलर से बाथरूम में, राइट, वो टम्बलर जो है वो प्लास्टिक का या मेटल का ही होगा, कपड़े का क्यों नहीं बना? क्यों? क्योंकि उसमें से पानी बह जाएगा, इसीलिए उसको कपड़े से नहीं बना सकते हैं। सो रिकॉल द एक्सपेरिमेंट्स विद द पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर नंबर 3 एंड कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड। तो टम्बलर क्या होता है कि उसके अंदर हम लोग कोई भी लिक्विड रख सकते हैं, पेट्रोल, पानी, दूध। अगर हम कपड़े का या पेपर का बनाएंगे तो उसमें से निकल जाएगा, है ना। We generally use the tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we think to make a tumbler out of cloth? अगर कपड़े का बनाएंगे टम्बलर तो बन तो जाएगा, लेकिन उसमें कभी कोई लिक्विड डालोगे तो नीचे से बह जाएगा। What we need for a tumbler is a glass या प्लास्टिक या metal or other such materials that will be able to hold the water. Similarly, it would not be wise to use the paper-like materials for cooking utensils. अभी हमको खाना जिस चीज़ में बनाना है वो कागज़ का यूज़ नहीं कर सकते, मेटल ही चाहिए उसमें। प्लास्टिक भी नहीं चल सकता क्योंकि प्लास्टिक का टम्बलर में अगर खाना बनाएंगे तो खाने से पहले तो टम्बलर जल जाएगा। कागज़ का बनाएंगे तो कागज़ जल जाएगा। तो खाना बनाने का जो वेसल्स यूज़ करते हैं हम लोग वो हमेशा मेटल का ही होता है,
है ना. So we see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. तो जो मटेरियल का यूज़ है, राइट, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग मटेरियल डिसाइड करेंगे. से फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं कि आप शादी में जाना है और स्कूल में छुट्टी है, राइट. तो शादी में आप नए कपड़े पहन के जाओगे या स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाओगे? क्यों? क्योंकि दोनों तो कपड़े ही हैं. स्कूल में छुट्टी है तो यूनिफॉर्म का तो ज़रूरत नहीं है, तो शादी में यूनिफॉर्म पहन के जा सकते हो. हाँ, जा सकते हो, लेकिन वो पर्पस उसका सर्व नहीं होगा. क्यों? क्योंकि शादी में तो लोग वैरायटी वाले कपड़े पहन के जाते हैं, और स्कूल में आना है तो आप शादी वाले कपड़े नए किस्म के वो पहन के नहीं आ सकते, यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ेगा, राइट. सो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी एंड द पर्पस क्या है हमारा, वो दो चीज़ ध्यान में रखते हुए हम मटेरियल सिलेक्ट करते हैं कोई भी चीज़ बनानी है तो. सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज. फॉर एग्जांपल देखो, अगर क्लास का मुझे मॉनिटर बनाना है किसी को, तो मैं किसको मॉनिटर बनाऊंगा? जो मस्ती नहीं करता होगा, जिसका वर्क कंप्लीट रहता होगा, राइट, जो टीचर की बात मानता होगा, ऐसे बच्चों को मॉनिटर बनाया जाएगा. या फिर ऐसा कि सब लोग जिसकी मस्ती करते हो, जो टीचर की नहीं सुनता हो, जिसका खुद का वर्क इनकम्प्लीट होता है ना. सो दैट इज़ हाउ वी आर सॉर्टिंग द थिंग्स. और पर्पस क्या है हमारा, राइट. अपीयरेंस, दूसरी चीज़ है अपीयरेंस. तो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in the wood. Right? अभी लकड़े का हम वायर नहीं बना सकते, राइट, लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन का हम वायर बना सकते हैं. आयरन का वायर जो होता है वो पानी में सड़ सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम और कॉपर का होगा वो सड़ेगा नहीं, राइट. सो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, एवरी वन ऑफ अस, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, राइट. सो चलो एक और एक्टिविटी करते हैं. कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, एंड डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी. ये सारी चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली, उसमें से कोई चीज़ चमकीली लगती है. सो सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू वन ग्रुप. तो जो चीज़ चमकती हो, शाइन वाली हो, उसको अलग रख दो, बाकी दूसरी चीज़ को और अलग रख दो. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 pieces एंड लुक एट द फ्रेशली कट surfaces. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include these objects also in the group of shiny materials. Do you notice such a shine or luster in other materials? Cut them any way as you can. Repeat this in, suppose कोई चीज़ है, राइट, वो चमकती तो नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा काट के देखो, तो जहाँ से काटा हमने वहाँ पर क्या वो चीज़ चमक रही है वो भी देखो. अगर वहाँ से वो चमक रही है तो भी उसको दूसरे ग्रुप में रख दो. A list of those with and without luster. अभी हमारे पास 2 ग्रुप हो गए, एक जो चीज़ चमकती है, लस्टर है, और दूसरी जो चीज़ नहीं चमकती, जिसके अंदर लस्टर नहीं है. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it is got luster or not. हाँ, अगर काट नहीं सकते उस चीज़ को, तो दूसरा एक है कि सैंड पेपर, जिसको हम कांच का अगर बोलते हैं, उससे उस चीज़ को घिसो. घिसने के बाद क्या वो चमकती है तो वापस उसको शाइनिंग वाले सरफेस में रख दो, और वरना नहीं चमकती तो दूसरे ग्रुप में रख दो, राइट. मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. तो अभी हमने जो चीज़ ग्रुप किया, तो जो चीज़ चमकती थी, जो पहले नहीं चमकती, उसको काटा कहीं से तो भी चमकने लगी. जो चीज़
चमक रही नहीं थी, उसको हम सैंड पेपर घिसे, फिर चमकने लग गई, इसका मतलब कि ये वो चीज़ जो है वो है मेटल। तो मेटल की एक खासियत है कि वो उसके अंदर चमक होती है। मेटल्स चाहे कोई भी हो, आयरन नया नया लोहा होगा ना वो भी चमकेगा, फिर जब धीरे धीरे पुराना हो जाएगा तो उसकी चमक चली जाएगी। ओके, और इसी तरह कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है, गोल्ड भी है, एंड सो अदर मेटल्स। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन इट। हाँ, कोई चीज़ जब पुरानी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल आपकी नई साइकिल है, तो जब आप नई साइकिल लेके आओगे तो उसका हैंडल जो है, वो पैडल जो है वो एकदम चमकता होगा, है ना। लेकिन फिर धीरे 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 जब आप रोज़ उसको यूज़ करने लगोगे, उसके ऊपर पानी गिरेगा, हवा लगेगी उसके ऊपर, तो उसकी शाइन धीरे 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 डल हो जाएगी। ओके, we therefore notice the luster only on the freshly cut surfaces. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for the freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. तो मेटल कोई भी होता है ना, उसके ऊपर जब हवा लगती है, हवा के अंदर थोड़ा सा पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है, वो जब मेटल के ऊपर लगती है तो उसकी शाइन को वो ढक देता है, राइट। फिर उस मेटल को जब हम काटते हैं तो जहाँ से हमने काटा है वहाँ से वो चमकीला दिखेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ से हमने काट दिया वहाँ पर हवा और पानी नहीं लगे थे, इसलिए वो चमक रहा है। फिर वो कटा हुआ पार्ट भी थोड़े टाइम रख दोगे तो इसकी भी शाइन चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर भी एयर और वाटर आ गया इसके ऊपर, इसलिए उसकी शाइन चली गई, राइट। दूसरी चीज़ है हार्डनेस। When you press the different materials with your hands, some of them may be hard to compress, while others can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of wood, aluminum, a piece of metal or other object. You can easily scratch some metals, while some cannot be scratched so easily. So materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress or scratch are called hard. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. तो दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है कि चीज़ या तो हार्ड होगी या तो सॉफ्ट होगी, है ना। हार्ड मतलब अगर आप लोहे की चाबी को ऐसे मोड़ने की कोशिश करो तो नहीं मुड़ेगी, राइट। और अगर पेपर है या कपड़ा है तो उसको आप मोड़ दो तो आराम से मुड़ सकती है। तो जो चीज़ को हम स्क्रैच कर सकते हैं, घिस सकते हैं, राइट, तो वो हार्ड है, और जिस चीज़ के ऊपर हम स्क्रैचेस नहीं कर सकते हैं वो सॉफ्ट है। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Now, can you think of other some properties that describe the appearance of the materials? और कौन सी चीज़ हो सकती है? हाँ, अब हमको देखना है जो मटेरियल है वो सॉल्यूबल है कि इनसॉल्यूबल है। जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो पानी में मिल जाता है या यूं का यूं ही रह जाता है ना। सो कलेक्ट सम ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, chalk powder, sand and sawdust. Take 5 glasses, beakers, fill each one of them about 2/3 with water. Add a small amount of spoon of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly add small amount of other substances into other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe what happens to these substances added to the water. Note your observations as shown. अभी देखो हमने 5 ग्लास लिए, उसके अंदर पानी भर दिया, उसके अंदर एक ग्लास के अंदर हमने नमक डाला, दूसरे के अंदर शुगर डाली, तीसरे के अंदर मिट्टी डाली, सैंड डाली, दूसरे के अंदर चॉक पाउडर डाला, और लास्ट वन में सोडस्ट, यानी कि जब लकड़े को हम काटते हैं तो उसका पाउडर निकलता है, तो वो लकड़े का पाउडर सोडस्ट, उसको हम पानी में डाल देते हैं। तो क्या होता है, फिर चम्मच से या किसी चीज़ से हिला लो
और थोड़ी देर बाद देखोगे तो क्या देखोगे कि यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड। तो ग्लास में तो हमने डाली थी शुगर, पहले दिख रही थी, जैसे ही चम्मच से या किसी चीज़ से हिलाया तो गायब हो गई। नमक जब डाला था तब दिख रहा था, अभी जैसे ही चम्मच से हिलाया तो गायब हो गया। तो वो कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, राइट। फिर हमने चॉक पाउडर डाला था, फिर हमने लकड़े का पाउडर डाला था, फिर मिट्टी डाली थी। तो कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही मिल जाएगी, कुछ जो है वो आधी मिलेगी, आधी नहीं मिलेगी, और तीसरी जो है वो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, यूं की यूं ही पानी में पड़ी रहेगी। सो इससे हमको ये पता लगता है कि एक प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इन लिक्विड या इनसॉल्यूबल इन वाटर, राइट। तो 3 प्रॉपर्टीज़ आज हमने देखी। एक, उसके अंदर शाइन, चमक है या नहीं। दूसरी, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। और तीसरी, पानी के अंदर मिल जाता है कि नहीं मिल पाता है, राइट। आगे का चैप्टर हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, इसी वीडियो के साथ में मैंने आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक का चैप्टर भी भेज दिया है। जिसके पास बुक नहीं है वो चैप्टर पढ़ सकता है उसमें, और क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज भी हमने भेज दिए। तो जैसे ही मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेन करना ख़त्म होगा तब तक आप घर पे लेसन भी पूरा लिख लोगे। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।